Hello and good evening, everyone. Welcome to the day 2 of spoken session. I hope the yesterday session was very beneficial to you and you got to learn something new or something in a different way at least, which was useful in your day-to-day lives. So today, when we have entered into day 2, we know what is sentence and how difficult it can be, how easy it can be. What are the different types of sentences, whether it's based on structure or based on the expressions, whether it's declarative, compound, like we know all the differences now. So we are good to go now. Now, before we go into the deep topics of the grammar, we need to go over the one topic which holds is a stem for the grammar topic, which are tenses. So today we'll start with tenses and also we'll do something really interesting with it, and I hope I could make it easy for you and I could show you how you can implement it in your day-to-day lives. Because when we learn English, when we learn grammar, we don't know how to speak it, we don't know how to use it. The usage is not taught to us. So today we'll make sure that we know how to use it, when to use it. We only can use grammar when we know when to use it. So today we'll be clearing out all our doubts for situations. So let's begin now. The overview is quite clear to you. So before we begin, some general information that due to curfew, we do not have the accessibility to Flying Feathers Advanced Technology Platform Studios. So for the time being, we will be delivering our classes on the Zoom platform. Students will get many more features when we will be delivering our classes from the studio. So please stay tuned. Visit live.flyingfeathers.com for class schedules. Follow our Facebook page, YouTube channel for daily updates, tips and tricks, and much more. And live classes are planned topic wise, not module wise. That is, the lectures will be delivered by topic experts and not complete module by just one trainer. If there are any new students today, this is how the screen works. First of all, there is a chat option. So you can ask me any sort of question and I will be answering that after the session ends. And then there is a screen area. I will be displaying my content through this. And then there is a volume option. So you can adjust the volume according to the requirement. And of course, there is question which is not working right now. Okay, this is how the fee system works. So you can recommend us to your friends. Okay, so we'll be covering grammar topic, some tools, vocabulary, and speaking topic. Okay, which related we'll be doing something. Okay, so as I was saying that we'll be covering tenses today. You know what is tense? Like, what is tense? And then we all know there is past tense, we all know there is future tense, we all know there is present tense. So what are tenses? Tenses basically are ਇੱਕ time ਤੇ ਉਸ situation ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ tense. Tense ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ situation ਦੇ ਕੀ grammar rules ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ tense ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ grammar rules ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਸ. ਟੈਂਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੂ ਡਿਡ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਡੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਦੋਂ ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ time. For example, whether you're talking today, you were talking yesterday, or you're going to talk tomorrow. ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਸ. So you all know there are three types of tenses: past, present and future. ਆਪਾਂ generally present, past, future ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ. past ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ past ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. present ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ present tense. and of course future ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ expected ਹੈ in future ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ future tense. So there are three types of tenses: past, present and future.
ओके, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस अपन को पता लग गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, बट सब टाइप्स कितनी है? 12 टाइप्स हैं गाइस। कोई भी टेंस है ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ 4 टाइप होगी। सिंपल टेंस जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो पहली अपनी कैटेगरी है सिंपल प्रेजेंट। अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं फिर आप कंटिन्यूअस पे आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ परफेक्ट कंटिन्यूअस ਕੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਤੇ परफेक्ट ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो कोई भी टेंस है ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ 4 कैटेगरीज है। अगर एक छोटा जो ओवरव्यू लवांगे बाकी ਆਪਾਂ डे बाय डे रोज एक टेंस करा करांगे। तो अगर आज ਆਪਾਂ देखिए ओवरव्यू देखिए तो प्रेजेंट सिंपल च की ਹੁੰਦਾ वर्ब ਦੀ फॉर्म एस लगा सकते हो, es लगा सकते हो, am is are। ओके, तो ये अकॉर्डिंग यूज करना है। पास्ट ही होगा हमेशा, सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हमने देख के यूज करने ने वो, पर डे बाय सिर्फ एक ओवरव्यू एक बार समझ लो कि आप स्टेप इन किस चीज च कर रहे हैं। देन सिंपल फ्यूचर है तो विल लग जूगा, सिंपल जो भी वर्ब है तो विल लग जूगा। आई विल डू दिस फॉर एग्जांपल। कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ एक निशानी होती है कि वर्ब नाल आपा की लगा देना है आईएनजी। पास्ट की भी वर्ब दी फॉर्म प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर च विल बी प्लस आईएनजी। देन परफेक्ट की होगा हैज हैव प्रेजेंट प्लस थर्ड फॉर्म। देन पास्ट की होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की होने वाला है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखो हैज हैव had हो जाएगा पास्ट, will have हो जाएगा फ्यूचर्स। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ परफेक्ट ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ हैज हैव ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ing ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ had ਉਥੋਂ परफेक्ट ਚੋਂ ਲਿਆ, ing ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ had been। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਚ been ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ दो का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों इकट्ठे आ रहे तो ਉੱਥੇ been ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ had है तो had ले लिया, been आ गया तो कंटीन्यूअस ing ले लिया, वो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिमिलरली मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल करा will be, ठीक है, उस तो बाद उसे इतने की हो जाएगा विल हैव हो जाएगा, हैव बीन अगेन बीन आ गया प्लस वर्ब क्योंकि कंटीन्यूअस था आईएनजी। जिससे कंटीन्यूअस वर्ड आ गया ओके एक गलत श्योर है कि आईएनजी होगा ही। ओके, सो ये अपनी कैटेगरीज हैं कि 12 टाइप से टेंसेस अपन ने कीती है। तो अपन ने आज तो सही 12 डेज आप अपने सारे टेंसेस कंप्लीट कराएंगे। आज डे 1 है। सो डे 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेंसेस एंड अपना पहला टेंस तुम इथे देख सकते हो कॉम्बिनेशन देखो सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट तो भी मैं उते भी सीधा जाना लो मैं डू डज दी थोड़े नाल कई जणियां नु लाइक इंक्लूडिंग मी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है वेयर टू यूज डू वेयर टू यूज डज। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूर करने लिए एक छोटा सा मैंने मैप बनाया। डू कदों यूज ਹੁੰਦਾ है, डज कदों यूज ਹੁੰਦਾ है। तो डू हमेशा आई वी यू दे नाल डू यूज होगा, ही शी इट नाल हमेशा डज यूज होगा। प्लीज ध्यान रखियो आई वी यू दे हमेशा डू, ही शी इट हमेशा डज। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਜਾਂ ਡੂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ। ओके, सो अपन ने कल सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब किया सी। ताकि हम अगर मैंने डू देखो अगर तो मैं कह रही हूं कि आई ड्राइव ओके या आई वर्क फॉर एग्जांपल आई वर्क या आई डू वर्क, तो अगर मैंने भी क्वेश्चन फॉर्म बनाया तो डू आई वर्क आ जाऊगा, डू दे वर्क आ जाऊगा, डज शी वर्क्स। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਡਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੂ ਲੱਗੂਗਾ, ही शी इट ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ आई वी यू ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ एस ईएस पीछे नहीं लगूगा, ही शी इट है तो एस ईएस पीछे लगूगा। आई ड्राइव शी ड्राइव्स, समझ आ गई तुम? वी वर्क शी वर्क्स, दे डू इट डज। तो एवं करके एक चीज का और ध्यान रखना है हमेशा कि एस ई एस अपन ने कदों लगाना है। ओके, तो आई वी यू दे नाल जो वर्ब दी फॉर्म है उम्मीद रह जाती है, बट ही शी इट नाल की हो जाती है एस ई एस पीछे लग जाता है।
ओके फॉर एग्जांपल वर्क है तो एस लग गया, ड्राइव है तो एस लग गया। तो इत्थे अपन ने की करता एस का भी देखना है। आई बी दो चीज़ें याद रखियो, आई बी यू दे नाल एक डू लग रहा है तो वर्ब की फॉर्म उमें लग रही है, एस ऐड नहीं हो रहा। ही शी इट नाल डज भी लगूगा, लेकिन अगर डज की जरूरत नहीं है तो तुम उत्थे की करोगे एस लगा दोगे। हुण डू डज की जरूरत कदों पैंदी है, दो ही केस च पैंदी है, या तो जो आप नेगेटिव बना रहे हैं किसी भी सेंटेंस का, शी डज नॉट लाइक द केक फॉर एग्जाम्पल, डज शी लाइक द केक, तो दो ही केसेस च आपां नूं डू डज की सिचुएशन की लोड़ पैंदी है, या तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, वो आप अगे करांगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है तो आपको सिंपल रखना पड़ेगा, शी लाइक्स केक। ओके तो हुण इत्थे लाइक नाल मैं एस क्यों लगाया, क्योंकि ही शी इट नाल की हुंदा है एस सी एस ऐड हो जाता है। आई लाइक केक हुंदा, आई लाइक्स केक नहीं हुंदा। इस करके इन्हां गल्लां दा थोड़ा जिहा आपने ध्यान रखना है। हुण वी आर गुड टू गो। हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस ध्यान नाल देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हुंदा है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ वर्ब टेंस व्हिच इज यूज्ड टू शो रेपिटेशन, हैबिट और जनरलाइजेशन। ध्यान नाल कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कदों यूज होगी, जदों या तो अपने रेपिटेशन शो करनी है, कोई चीज जो रोज होंदी है, कोई चीज जो होने दा आदत है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो रेगुलर हो रही है, ठीक है, वो रेपिटेशन कोई आदत, आदत की होंदी है कॉन्टिन्यूअस है, अगेन आदत बारे गल करांगे तां भी प्रेजेंट टेंस यूज करांगे। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब कोई चीज जो सब ते एक सही बैठ रही है, फॉर एग्जांपल वी हैव एंटर्ड द 21st सेंचुरी, हुण इत्थे वी हैव च सारी दुनिया आ गई, वह एक जनरलाइजेशन होगी जो सारी दुनिया ते लागू होंदी है। कोरोना इज डेडली, कोरोना की है बहुत खतरनाक है, तो यह की है एक मेरे ते अप्लाई नहीं हो रही, थोड़े ते अप्लाई नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड ते अप्लाई हो रही है। जनरलाइजेशन का मतलब की हुंदा है जो कोई गल कुछ लोगों ते नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों ते अप्लाई होवे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जनरलाइजेशन कहने हैं। तो अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस कदों कदों यूज करना, या तो जो आप रेपिटेशन की गल कर रहे हैं, कोई चीज बहुत बार बार होने की आदत है, या अपनी कोई आदत है, हैबिट बारे आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई जनरलाइजेशन बारे आप गल कर रहे हैं। Less commonly, बहुत घट, the simple present can also be used to talk about scheduled actions. Scheduled actions मतलब जो थोड़े टाइम च होने वाले हैं, जिन पर मैं अवेयर है कि होगा। ओके सो scheduled actions की ਹੁੰਦਾ है कि फॉर एग्जांपल आई हैव टू अटेंड मीटिंग, तो हैव हो गया ना, तो इत्थे ਆਪਾਂ ਕੀ कह रहे हैं कि ਮੈਨੂੰ मीटिंग अटेंड करना, कोई scheduled action है कि ये थोड़ी देर च होगा, मैं कंफर्म है, ਮੈਨੂੰ पूरी अवेयरनेस है इन द नियर फ्यूचर। तो जो अपने हल्के जी फ्यूचर की भी गल करनी होगी, कोई चीज शेड्यूल्ड है, रोज इस वक्त होंगी है, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर आ जाती है। ओके या फिर कुछ एक्शन जो कि इस वक्त हो रहे हैं, ये अपन क्लीयर है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उत्थे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। फॉर एग्जांपल तुसीं इत्थे रेपिटेशन दे सकदे हो, माई वॉच कीप्स गुड टाइम, ठीक है, माई वॉच कीप्स गुड टाइम मतलब कदों जो अपनी वॉच लगी होंदी है तो आप ये कह देना माई वॉच कीप्स गुड टाइम, कि अच्छा ही अच्छा होंदा, मेरी घड़ी कभी खराब नहीं होती, यू नो मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, that means my watch keeps good time. The referee blows the whistle, referee दा काम की है blows the whistle, that ये generalization होंदा, referee दा काम की है whistle मार के order देना, ठीक है। lemon is always sour, हुन ये generalization अगेन है कि नींबू हमेशा ही खट्टा होता है। ओके हुन इस कोई भी किंतु परंतु नहीं हो सकता कि नींबू नहीं, आज नींबू मीठा हो गया, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जनरलाइजेशंस वक्त भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो। सो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਓਕੇ ਹਰ ਟੈਂਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, हर टेंस की तीन फॉर्म्स होंदियां ने, एक तो होंदी है पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म। तो कभी भी कोई टेंस है आप अगे अगर कोई भी कैटेगरी कर रहे हैं तो आपको तीन चीजें करनियां ही पैनियां ने, स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव सेंटेंस, एक क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मतलब जिस आप रिफ्यूज करांगे, जिस आप मना करांगे। The simple present is just the base form of the verb. Questions are made with do and negative forms are made with do not. ਹੁਣ ਇਥੇ do does ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, he she it ਹੈ ਤਾਂ do ਦਾ does ਲੱਗੂਗਾ, I you we ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ do ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल you speak English,
यू स्पीक इंग्लिश एक नॉर्मल है थोड़ी आदत है कि थोड़ी इंग्लिश बोलने की आदत है तो इतने यू स्पीक इंग्लिश ओके हुन क्वेश्चन आ गया तो मैंने डू लगाना मैंने यू नाल डू लगता है डू यू स्पीक इंग्लिश की तुसी इंग्लिश बोल लेंगे हो देन नेगेटिव डू नाल हमेशा नॉट लग जाऊगा या डज है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लग जाऊगा हमेशा नॉट डू या डज नॉट तो नेगेटिव की हो गया यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश तुसी इंग्लिश नहीं बोल सकते ओके सो यू स्पीक हुन ही स्पीक्स इंग्लिश अगर मैं ही शी इट लगा रही हूं he speaks English अगर क्वेश्चन है does he speak English ओके ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ do does ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇਹ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ do ਜਾਂ does ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ does she speak English does she speaks ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ does she speak English ओके सो नेगेटिव की हो गया she does not speak English the do does नाल verb दी फॉर्म की हो जाएगी फर्स्ट लग जूगी अगर पॉजिटिव है तो तुसी ses लगाना ही लगाना है एक बारी और सुन लो he she it ना जो do does लगाओगे तो ਜਦੋਂ ਵੀ do does लगाओगे तो verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਫਰਸਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ he she it ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ do does ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ 네ਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ do ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ does ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ do does ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ फर्स्ट सिनेरियो नो डिटेल च डिस्कस करांगे पहला अपना सिनेरियो हैगा रिपीटेड एक्शन कोई रिपीट मतलब कंटिन्यूअसली जो चीज हो रही है कोई भी एक्शन जो बार 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 हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ उसे आप यूज करनी है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करनी है यूज द सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल मतलब कोई चीज जो बार बार होती रहती है आप यूजुअल भी कह सकते हैं इट यूजुअली हैपेंस ये अक्सर होंगे सो अक्सर द इंग्लिश अपन यूजुअल कह देते हैं यूज अ सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल द एक्शन कैन बी अ हैबिट हुन वो एक्शन जो बार बार हो रहा है थोड़ी आदत हो सकती है थोड़ी हॉबी हो सकती है हॉबी मतलब जो तुहानू करना पसंद है या कोई डेली चीज हो सकती है फॉर एग्जांपल नहाने आपा रोज वो अपना एक एक्ट एक इवेंट है जो आपको करना ही पैना शेड्यूल्ड इवेंट कोई चीज जो रोज होंदे जिहदे बारे तुसी अवेयर हुंदे हो और समथिंग जो अक्सर होंदी रहती है इट कैन आल्सो बी समथिंग अ पर्सन ऑफन फॉरगेट्स और यूजुअली नॉट टू ये छड़ दो लाइन फॉर एग्जांपल देखो आई प्ले टेनिस आई है तो प्लेज नहीं होया इत्थे ठीक है सो आई वी यू दे नाल आपां क्या सी कि एससीएस नहीं ऐड होगा तो इत्थे मैंने एससीएस नहीं ऐड किया आई प्ले टेनिस तो मैंने सिंपल बनाया एंड अगर मैंने नेगेटिव बनाना वो भी शी नाल दा की होगा शी डज नॉट प्ले हुण तुहानू इत्थे ध्यान दिता कि डज नॉट नाल अगर मैं डज ऐड किया तो प्ले इत्थे प्ले ही रह गया अगर मैनू एफर्मेटिव बनादा हुण शी डज नॉट प्ले टेनिस तो मैं क्या भी चलो भी नेगेटिव नहीं इनू एफर्मेटिव बनाओ यानी इनू पॉजिटिव बनाओ तो उत्थे की आ जाऊगा शी प्लेज टेनिस I hope it is clear to you now. So, हुन इथे एक्शन रिपीट की हो रहा है आई प्ले टेनिस अगर मैं कह रही हूं कि आई प्ले चेस या आई प्ले टेनिस मतलब की होया कि मैनू अक्सर ये चीज़ां नू खेलण दी आदत है मैनू ये गेम पसंद है एंड मैं अक्सर ये गेम खेलदी हां तुहानू मेरी हॉबी क्लियर होगी शी डज नॉट प्ले टेनिस मतलब एक जनरलाइजेशन है कि उन्होंने टेनिस पसंद नहीं है वो नहीं खेल ठीक है सो यही गल इस वक्त हो रही है तो इस करके आप इत्थे की लगा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस उन दोनों एक हैबिट है दूसरी जनरलाइजेशन है शी डज नॉट प्ले टेनिस उन्हें टेनिस खेलना पसंद नहीं है सो एक ही हो गया अपना रिपीटेड एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जो बार बार हो रहा है या जी भी बार बार कोई हो सकन दे चांस ने थोड़ी कोई हॉबी है थोड़ा कोई डेली इवेंट है या फिर कोई चीज जो तुहानू अक्सर करनी पसंद है तो वो रिपीटेड एक्शंस इस सारे केसेस की लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके अपना सेकंड फॉर्मूला सीगा कि एक तो सिचुएशन अपने क्या सी कि भी अगर आपका कोई रिपीट एक्शन अगर तो कोई एक्शन बार बार हो रहा है मैं उथे यूज करूंगी अपनी सिंपल प्रेजेंट टेंस या मैंने क्या सी भी फैक्ट्स या फिर जनरलाइजेशन मैं तुहानू क्लियर करता सी फैक्ट मतलब
कोई भी चीज जो आई होंदी है जो पता ही है फैक्ट है, फॉर एग्जांपल इट इज अ फैक्ट दैट अच्छाई की सेंटेंस ही, आई एम नॉट गेटिंग इट, चलो उन्हें छोड़ो। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ओके सो ਇਹ फैक्ट है। फैक्ट की ਹੁੰਦੀ कोई चीज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सो फैक्ट मतलब की ਹੁੰਦਾ कि कोई चीज आई ਹੁੰਦੀ जो ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ठीक है। तो वो की हो गया फैक्ट है। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, एक फैक्ट है कि सन हमेशा ईस्ट, कभी सुने तूने कि सन आज ईस्ट नहीं आज वेस्ट हो गया है? नो, तो ये फैक्ट है। जनरलाइजेशन मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा लोगों ते लागू होंदी है, सिर्फ एक इंसान ते नहीं। तो उत्थे भी ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true, कोई भी चीज जो true सीगी सही हुन है या चाहे सही in future prove हो जाए। ਹੁਣ generalization future ਨੂੰ लेके भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि आने वाले months कुछ लोगों लिए डिफिकल्ट होने वाले ने, ये मैंने जनरलाइज करता एंड ये सच भी है। क्यों? क्योंकि ਹੁਣ कोरोना करके इकोनॉमी नीचे चली गई एंड मे बी लोगों ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ मैंने इतने जनरलाइजेशन करती कि मे बी फ्यू मंथ्स माइट बी डिफिकल्ट फॉर द पीपल, आने वाला कुछ समय शायद लोगों लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये जनरलाइजेशन होता है। ऐसी कितने भी कोई भी सिचुएशन है जिथे मैं फैक्ट की गल कर रही है जो चाहे हुन सही है, पास्ट सही सी या फिर इन फ्यूचर सही हो सकता है, उसे ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे? सिंपल प्रेजेंट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ द स्पीकर इज करेक्ट अबाउट द फैक्ट। ਹੁਣ देखो फैक्ट ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि सही हो, ओके। फॉर एग्जांपल कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ वो फैक्ट हो सकता है। ਹੁਣ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि आने वाले मंथ्स कुछ डिफिकल्ट हो सकता है कि आने वाले मंथ्स बहुत अच्छे हो जाए, गरीबी नीचे चली जाए, खाना सस्ता हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक बार मैंने फैक्ट करता, हो सकता है वो फ्यूचर से जाके गलत हो गए, बट मैंने एक फैक्ट कंसीडर करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ओके। It is also used to make generalizations about people or things. Example देखो, cats like milk, इफेक्ट है, इफेक्ट है कि बिल्लियां ਨੂੰ दूध अच्छा लगता है, this is a fact. California is in America, इफेक्ट है, ओके। सो कैलिफोर्निया कितने है? अमेरिका च है। तो लाइक हो गया, या फिर हाँ एक चीज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी डिस्कस करने वाली, जो तो पर डू डज दी वर्क की है सी, ता इट नाल अपन ने इट की है गाइस, अपन ने कैसी कि ही शी इट नाल हमेशा की लगूगा डज लगूगा, ठीक है। तो ही शी इट, हुन इट की है, इट हुंदा ओ कोई भी थर्ड पर्सन, इट हो सकता है मैं, इट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, इट हो सकता है कोई भी चीज, वर्ड, बुक, एनीथिंग, इट मींस एनीथिंग, ओके। तो जो भी आप इट यानी इट कर रहे हैं तो उत्थे की हो जाऊगा? डस लगूगा। लेकिन अगर इट प्लूरल च हो गई, जिवें हुण इत्थे कैट की है इट है, पर इत्थे मैंने उन्हें प्लूरल ले लिया, तो उत्थे भी वर्ब दी फॉर्म की रहेगी? फर्स्ट रहेगी। ये गल दा ध्यान रखियो। हुण इट नाल मैं तुहानू क्या डस लगूगा, बट ये देखो राम डस, ठीक है। राम एंड सीता डस, तो दो भी हो गए, तभी थोने एम ध्यान च रखना। चलो दोबारा आने हैं। कैट लाइक मिल्क, कैट्स लाइक मिल्क, तो बिल्लियां दूध पसंद है, एक जनरल फैक्ट हो गया। एक फैक्ट है कि हमेशा ही कैट्स को दूध पसंद होता है। कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका, ये फैक्ट है, ये जनरलाइजेशन नहीं है, फैक्ट्स ने। कैलिफोर्निया अमेरिका च है, हुण ये तो हो सकता है कि कैलिफोर्निया की पोजीशन बदल गई, नो, इट इज अ फैक्ट। तो कैलिफोर्निया अमेरिका च है, कैट्स को मिल्क पसंद है, ये सब की ने फैक्ट्स हैं। लाइक इज, ये दोनों की ने प्रेजेंट फॉर्म्स थे, they present simple tense बन गए, ओके। ओके, अपनी लास्ट कैटेगरी है scheduled events in the future. Scheduled events in the future का मतलब क्यों है? Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in near future. Scheduled events मतलब कोई चीज जो आने वाले टाइम च होने वाली है, या कोई चीज जो थोड़े टाइम च होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, मे बी कुछ सेकंड्स बाद, मे बी कुछ मिनट्स बाद, तो उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? scheduled events in the future. This is most commonly done when talking about public transportation. देखो कोई भी चीज जो थोड़ी देर च होने वाली है, अगर वो बारी शेड्यूल मतलब कोई चीज इस वक्त ते होनी तय होगी। शेड्यूल का मतलब होता है कि टाइम सेट हो गया कि ये चीज इस वक्त होगी,
टाइम सैट हो गया इस वक्त होगी तो ये ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है कि फ्लाइट इन्ने बजे आऊगी, ट्रेन इन्ने बजे निकलूगी या फिर ट्रेन इन्ने बजे चलूगी। तो ज्यादातर जो टाइमिंग सैट होंगी है ना ट्रांसपोर्टेशन से सैट होंगे ने। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇਵੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇਵੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਦਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲੀਵਸ ਟੂਨਾਈਟ ਐਟ 6 PM। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲੀਵਸ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ SES ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, तो उधर मैंने S लगाता। The train leaves tonight at 6 PM। ओके, the train आज रात 6 बजे चलूगी। ਹੁਣ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, यानी ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ऑफकोर्स ਇਹ प्रेजेंट ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Your train leaves tonight at 6 PM। When do we board the plane? ਹੁਣ IVU ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SES ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਨਾ, ਬੱਸ ਫੜਨੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ, ਤਾਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਨ ਡੂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਲੇਨ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। सो अगर मैंने थोड़ी देर च एंटर करना, मैंने काली है यानी मैंने आज ही ये काम करना है। अगर मैंने आज ही ये काम करना है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस वक्त हो रही है, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਗਾਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਿਪੀਟੇਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ फैक्ट्स या फिर जनरलाइजेशन, एंड अपना थर्ड सीगा शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर मतलब कोई भी चीज जो नियर फ्यूचर च होने वाली है, थोनू बट ओदी पूरी अवेयरनेस है कि वो कदों ते किवें होगी, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शेड्यूल्ड इवेंट्स। ओके, बिफोर वी प्रोसीड ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲਸ। First comes for you. The party dash at 8 o'clock. The party starts at 8 o'clock. The party is at 8 o'clock. Fifteen seconds left. Okay, time up. Okay, 85% students have said that a party starts at 8 o'clock and is start kiya 15% ne. So starts is the right answer. Why starts is the right answer? Starts क्यों हुआ? Reason is कि party it वाली category है, he she it I told you। ਤਾਂ it वाली category च ਆਪਾਂ SES add करते हैं। SES add किया था start का, starts बन गया, and is का अपन लगाने की लोड़ ही नहीं। Okay, so the party starts at 8 o'clock। इस अपने आप एक वर्क फॉर्म है, तो दो वर्क फॉर्म इकट्ठे नहीं आ सकते। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस थोने नेगेटिव सेंटेंस बनाने, तो देख के डू डज यूज करो अपने अकॉर्डिंग। थोनू डू डज क्लियर कितना सी। टाइम अप।
he she it ਨਾਲ does use ਹੁੰਦਾ, he she it ਨਾਲ do नहीं use ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੈ। so he she it ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ does not ਹੋਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ does not, he she does not, ठीक है। he does not need help right now, इस वक्त ਉਹਨੂੰ help नहीं चाहिए, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ मतलब present tense, यानी ਆਪਾਂ ने बिल्कुल ठीक tense लगाया था, ये simple present का negative form। okay, cool, 85% students have again answered the right one। last question for today, dash you have your passport with you। now this is अपन एक simple कर लिया, एक negative कर लिया, and अपना interrogative do does, I मैंने एक्चुअली डू डज इससे प्रैक्टिस दोनों करा रही हूँ क्योंकि डू डज आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर फर्स्ट डे डू डज क्लियर नहीं होया तो बहुत आगे प्रॉब्लम आएगी। Okay, so 92% students have said do you have passport with you, do you have your passport with you, and 8% have said does तो किस हिसाब नाल नहीं बनदा, आई वी यू दे नाल की लगना है, डू ही लगना है, डज लग ही नहीं सकता, तो यू सी तो डू ही लगूगा। हजे भी थोड़ा क्लियर नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ आई वी यू दे नाल डू एंड ही शी इट नाल डज, इट कुछ भी हो सकता है। ओके, आई होप थोनू ये क्लियर होगी ये चीज, बट फिर भी आपां अगे वधन तो पहला एक रीकैप जरूर लेंगे। डू डज तो स्टार्ट कर लेने, तो ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ डू लगूगा, अगर ਤੁਸੀਂ नेगेटिव बना रहे हो तो डू नॉट हो जाऊगा, ही शी इट नाल डज लगूगा, अगर नेगेटिव बना रहे हो तो डज नॉट हो जाऊगा, अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो ये डू या डज की हो जाएंगे, अगे आ जाएंगे सब्जेक्ट के। ओके, सिंपल एक चीज अपन होर की सी कि आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ फॉर्म की ਰਹੂਗੀ, फर्स्ट फॉर्म ਰਹੂਗੀ, ओरिजिनल फॉर्म ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਚ कोई चेंज करने की लोड़ नहीं होगी। बट ही शी इट ਨਾਲ अगर कोई भी वर्ब ਦੀ फॉर्म आ रही है तो ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ है, एस या फिर ईएस। इस तो बाद अपने स्टार्ट किया सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिन्हों आप अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह दें, वो एक यह जिहा टेंस है जो कदों यूज होगा या तो जो आपने तीन चीज़ों बारे गल करनी है, रेपिटेशन, कोई चीज़ बार बार हो रही है, कोई आदत जो थोड़ा अक्सर करने की आदत है, या फिर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब वो चीज़ बहुत लोगों को लैके एक स्टेटमेंट में दी है, तो उत्थे आपां की करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लें। शेड्यूल्ड एक्शन बहुत घट बट बहुत बार सिंपल प्रेजेंट टेंस उदों भी यूज होंगे जो आपने की गल करनी हो कि कोई चीज इन फ्यूचर थोड़ी देर च होने वाली है, बट होगी अज ही इसी वक्त होगी, तो उत्थे मैं की यूज कर लेने सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपना फर्स्ट एक्शन सीगा, फर्स्ट एक्शन तो पहला चलो आप देख लेने, कोई भी टेंस आप करांगे, कोई भी कैटेगरी करांगे, उसके तीन फॉर्म जरूर करांगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो अगर यू स्पीक इंग्लिश तो क्योंकि यू है तो डू लगूगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर नेगेटिव है तो सिंपल डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर ही शी इट है, फॉर एग्जांपल शी स्पीक्स, एस ई एस लगाना होगा, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डू डज नाल वर्ब दी फॉर्म अगेन वन हो जाएगा, कभी भी वर्ब दी फॉर्म डू डज नाल एस ई एस उमें नहीं रहता। ओके, अपनी पहली कैटेगरी सी रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन मतलब कोई चीज़ जो बार बार हो रही है, उन्होंने बार बार तीन चीज़ा होंगे ने, या तो थोड़ी कोई आदत है तो बार बार कर रहे हो, थोड़ी कोई हॉबी है तुम्हें करनी अच्छी लगती है हाँ तुम बार बार कर दो, कोई डेली चीज़ है, डेली इवेंट है, करना ही पैना, जिवें आपां खाना खाना ही है रोज़, ये डेली की चीज़ है, या फिर कोई शेड्यूल्ड इवेंट है जो शायद रोज़ होंदा है। तो इतने एग्जाम्पल देखो, आई प्ले टेनिस, ये मेरी एक हॉबी है, आई प्ले टेनिस, तो मैं बार बार इसलिए खेलती हूँ। शी डज नॉट प्ले टेनिस, वो क्यों नहीं खेल रही, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, एक जनरलाइजेशन आ गई कि उन्हें खेलना अच्छा नहीं लगता। फैक्ट्स और जनरलाइजेशन। फैक्ट्स मतलब कोई चीज जो फैक्ट है सही होंगी है, फॉर एग्जांपल कैट्स लाइक मिल्क एक फैक्ट है, कोई तुसी बिल्ली ऐसी नहीं देखोगे जिन्होंं दूध नहीं पसंद होगा। ओके, सो फैक्ट की होंगे जो चीज सही हो, क्योंकि वो इन बर्थ है, अपने च एमी होंदा है। ओके, सो कैट्स लाइक मिल्क,
फ्यूचर फैक्ट्स और जनरलाइजेशन गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टेटमेंट जारी करते मे बी इन फ्यूचर मैं रॉन्ग प्रूव करते, बट वो स्टेटमेंट मैनू नहीं बहुत लैके लोगों को अगर जारी की जाए तो उन्हें जनरलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, तो कोई फैक्ट है जो शायद पहला ट्रू सी हुन ट्रू है या आने वाले फ्यूचर सही हो सकता है, मैं जनरलाइजेशन कह देनी है। फॉर एग्जांपल कैट्स लाइक मिल्क, कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका, ये दोनों की फैक्ट्स हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका अच्छा, कैट्स को मिल्क पसंद है। ओके, एंड इस तो बाद शेड्यूल्ड इवेंट्स ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। शेड्यूल्ड इवेंट्स मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, शेड्यूल्ड इवेंट्स। बट होंगे आज ही, ताही वो प्रेजेंट जाएंगे। अगर आप हुनी कह रहे हैं भी आज ही होने वाली है, हुनी होने वाली है ने, तो उन्होंने आप की कहने हैं शेड्यूल्ड इवेंट्स। ज्यादातर एक केड़ी कैटेगरी च लगूगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वही हुंदा कि थोड़ी देर च बस आने वाली है, थोड़ी देर च होने वाला है उदो। या फिर आप कोई मीटिंग्स कोई फॉर्मल काम है तो उन्होंने लेके आप यही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन कितने बजे चलती है, रोज 6 PM ही चलती है। ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 6 PM, ट्रेन आज कितने चलूगी, की शेड्यूल है 6 बजे ट्रेन चलूगी। व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, इस तो क्लियर हो गया कि मैनू आज ही प्लेन चढ़ना है, तो कदों चढ़ना है, व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, ये दी इंटरोगेटिव फॉर्म है। एक कैटेगरी मिस होगी। चलो, before we proceed, there is some general information for you guys. To know more about your study abroad options, that is for September 2020 and Jan 2021 intakes, please send us the following documents at visa@flyingfeathers.com. You can send us your +2 mark sheet, your IELTS PTE Duolingo score if available, country preference, your province preference, and your intake preference. Intake means whether you want to start at September 2020 or Jan 2021. One of our advisor will then contact you with options and details, or you can directly call us at 807007500. So if you want to know more about your options, either you can mail us or you can call us. We will try to be beneficial to you. हाँ जी, so अपने बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि लाइक बहुत फ्रेशर है, मतलब मैंने न्यूज़ मिली सी कि बहुत फ्रेशर है। तो फ्रेशर्स ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। खुद ਨੂੰ इंट्रोड्यूस किमें करना है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ बट यू कैन कॉल मी कुशा। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी ने नाम दसता कुशा शर्मा, अपना नाम दसता मतलब, तो वो इंसान तुम फुल नेम तो नहीं लेके जाऊगा बार बार। फॉर एग्जाम्पल सारे में कुशा शर्मा, तो मेरे लिए भी ऑकवर्ड है। आई विल से कि नो नॉट कुशा शर्मा, यू कैन कॉल मी कुशा आल्सो। सो इसलिए चीज़ों होर ईजी करने लिए आप की कहते हैं माय नेम इज कुशा शर्मा, बट यू कैन कॉल मी कुशा, या यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम कुशा, फील फ्री टू कॉल मी कुशा। ओके, तो तीनों चो कुछ भी कह सकते हो अगर याद रहता है। कुछ नहीं याद रहता तो सिंपल अपना नाम दस दो। ओके, बट बोलना है आपका। चलो, आई हेल फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। हेल मतलब रेजिडेंस, बिलोंग भी होता मतलब सेम है, सिनोनिम्स हो गए। आई हेल फ्रॉम बरनाला, आई बिलोंग टू बठिंडा, जो भी थोड़ा रिस्पेक्टिव शहर है तुसी इत्थे दस देना। आई हैव डन माई, अगर दा थोड़ी स्टडी कोई कंप्लीट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल यू हैव कंप्लीटेड योर +2 or 10th, you can tell that I have completed my 10th grade, I have completed my 12th grade, graduation completed होगी, graduation complete हो गया, I have completed my graduation। ठीक है, अगर 10th +2 स्पेशली दस रहे हो तो अपनी स्ट्रीम भी मेंशन करियो। I have completed my 12th grade in science stream, whatever जो भी थोड़ी स्ट्रीम्स है। अगर कर रहे हो 9th जो +1 जो ग्रेजुएशन चल रही है, आई एम डूइंग माई स्टडीज, या फिर आई एम डूइंग माई 9th ग्रेड, करेंटली आई एम एनरोल्ड इन 9th ग्रेड। तो अगर स्टडीज चल रही है तो आई एम डूइंग कंटिन्यूअस है, चल रही है, जो खत्म नहीं हुई तो डूइंग आ जो। हुन
फैमिली बारे दसना पऊगा थोड़ा बहुत। इन माई फैमिली वी आर डैश मेंबर्स, जिन्ने भी थोड़ा टोटल बनता है 6 7 5 4 जो भी, ठीक है। तो तुसी इत्थे वो दस देना है, इन माई फैमिली वी आर 5 members in all, 4 members in all। या फिर आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर होंगी है छोटी फैमिली। जॉइंट फैमिली बनने तो सिंपल जॉइंट फैमिली कह दो। 3 ऑप्शंस हो गए थोड़े को। अगर तो सिंपल दस दो कि मेरी फैमिली च इन्ने मेंबर्स हैं, या दस दो आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मतलब छोटी फैमिली। अगर बड़ी जॉइंट फैमिली च रह रहे हो तो जॉइंट फैमिली मेंशन कर दो। इस तो बाद अपने ब्रदर सिस्टर बारे सिबलिंग्स होंगे अपने रियल भैन भरा। सिबलिंग्स हमेशा रियल भैन भरा वाली वर्ड यूज होता है। सो आई हैव वन सिबलिंग, वन यंगर सिबलिंग। छोटा भरा है तो यंगर सिबलिंग, अगर बड़ा भरा है तो एल्डर सिबलिंग। तो 1 2 जिन्ने भी थोड़े रियल ब्रदर सिस्टर्स है ने तुसी इत्थे मेंशन कर देना। हाँ जी, माय हॉबीज, हॉबीज दसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉबीज की हैं थोड़ियां, स्लीपिंग हो सकता है, ओके, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। जो भी थोड़ी हॉबीज है तुसी यही बता सकते हो। माय हॉबीज आर डैश, या फिर आई लाइक टू डू कुकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग इन माय फ्री टाइम। तो तुसी दो चो कोई भी सेंटेंस चूज कर लो कि मेरी हॉबीज ये ने, या फिर ਜਦੋਂ मैं हॉबीज की ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो चीजें ਆਪਾਂ फ्री टाइम च करते हैं, ओके। या फिर तुसी कह सकते हो सिंपली कि आई स्पेंड माय लेजर टाइम in cooking, sleeping, eating. I don't know why I'm saying sleeping bar bar. Okay, next is okay, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल आई लव टू डू कुकिंग इन माय फ्री टाइम, बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ लाइक्स डिसलाइक्स भी हैं। जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर अपने दसना तो आई हेट येलो कलर, ਮੈਨੂੰ येलो कलर तो सख्त नफरत है। देन डिसलाइक आ गया मेरा। इस तो इलावा आई लव डॉग्स, ये मेरा एक लाइक है। नहीं मैं फ्री टाइम च नहीं, ਮੈਨੂੰ अगर किते भी डॉग या वगैरह दिखे ना आई ट्राई टू इंटरैक्ट विद देम, ठीक है। तो तुम अपने लाइक्स डिसलाइक्स अलग तो भी दस सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सही अपने हॉबीज दसनी तो गल खत्म, नो, ओके। तो तुम अपने लाइक्स डिसलाइक्स अगर कुछ स्पेसिफिक है तो तुम मेंशन कर सकते हो कि आई लव डॉग्स, आई लव पर्टिकुलरली ये चीज, आई एम अ पिज्जा लवर, कुछ भी कह सकते हो। आई एम अ डैश पर्सन, आई एम अ डैश पर्सन च दो ही चीज़ां होंदियां ने, या तो तुसी एक्सट्रोवर्ट हो या तुसी इंट्रोवर्ट हो, या चलो तीजी भी ऐड कर लो एम्बीवर्ट हो। हुन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट की है। एक्सट्रोवर्ट EXTRO, एक्सट्रोवर्ट की हुंदा है ਉਹ इंसान जो ईजीली घुल मिल जाता है सब नाल, जो ईजीली जिन्होंने फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल औखा नहीं है, ठीक है। तो वो इंसान जो फटाफट लोगों नाल घुल मिल जाता है उन्होंने तुसीं की कहोगे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ਇਹਦਾ ऑपोजिट होगा, वो इंसान जो बहुत टाइम लेता है, वो इंसान जो बहुत शाय है, जो ईजीली लोगों नाल बिल्कुल नहीं सकता, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ इंट्रो, INTRO, इंट्रोवर्ट। थर्ड कैटेगरी एम्बीवर्ट। हुन एक ही होया एम्बीवर्ट, अगर एक्सट्रोवर्ट इजीली घुलन मिलन वाला है, इंट्रोवर्ट बहुत शाय लोगों लिए यूज होता है, तो एम्बीवर्ट की होया मतलब कुछ लोगों नाल एक्सट्रोवर्ट, फॉर एग्जांपल घर आके एक्सट्रोवर्ट, बाहर इंट्रोवर्ट, वो कैटेगरी के लोग ज्यादा होंगे, ठीक है। तो तुसी उथे उन्हां लोगों लिए ਆਪਾਂ कीवर्ड यूज करते हैं MB, AMBIVERT, एम्बीवर्ट। वो लोग जो सारे किते एक कैटेगरी नहीं होंगे, घर आके हो सकता है बहुत ज्यादा जिंदा दिल इंसान हो, इजीली बहुत उच्ची उच्ची बोलते हो और सब घर दे नाल बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, but the moment they step out of the house they feel shy to interact with people। तो ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ambivert। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। next I admire those people, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ admire ਹੁੰਦਾ अच्छे लगना। I admire those people who are, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ अच्छे लगते ਨੇ who are loyal, जो लोग लॉयल ने, लॉयल की ਹੁੰਦਾ चीट नहीं करते, जो वो लोग मैंने अच्छे लगते हैं। सो एडमायर या आई प्रेज दोस पीपल हु आर लॉयल। आई डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब हेट, ओके, या तुसी सीधा हेट कह सकते हो। आई डिटेस्ट दोस पीपल हु आर रूड, जो लोग जिन्होंने लोगों को बोलने की अकल नहीं होंगी वो मैंने लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुसी ये दस सकते हो। तो तुसी दोनों चो कोई देखो अपने शब्द होंगे हैं कि वो लोग मैंने पसंद नहीं, वो लोग मैंने पसंद नहीं। I hate those people who speak very loud, या I hate those people who listen music very loud। कुछ लोगों को आते हैं म्यूजिक बहुत ऊंचा सुनते हैं, बस कार ट्रैवल करो नाल वाले दा बैठना औखा कर देंगे ने। ओके, सो तुसी कोई भी कैटेगरी मेंशन कर सकते हो लोगों की जो तुहानू नहीं पसंद, एंड वो भी कैटेगरी मेंशन कर सकते हो जो तुहानू पसंद है लोगों बारे।
ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹੋ, ਮਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਟੂ, ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਲਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल इस वक्त मेरा मुद्दा की है दैट आई वांट टू गो टू कनाडा फॉर माय हायर स्टडीज। इस वक्त मेरा एम ये है इस सिचुएशन बट मेरी जिंदगी का एम की है कि मैं एक बिजनेस वूमन बना। ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੌਪ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस वूमन, या फिर आई वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एनी जो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्टरी पैटर्न। अज तो आप यही पैटर्न फॉलो करना है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਦੱਸੋਗੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੌਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਲੋਇਲ, ਜੈਨਰਸ, ਸ਼ਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਐਡਮਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੈਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਟਰਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੰਗ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਐਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਪੀਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਨॉट गुड फॉर हेल्थ और मेंटल हेल्थ बोथ। ओके सो जो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਸਹੀ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਬਟ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਵਰ ਅਗੇਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਅੰਟਿਲ ਆਈ ਗੈਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਰੌਕ ਇਟ। ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੀਟ ਯੂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। हाँ जी, when will she board the plane today? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ, हाँ जी एस नहीं आऊगी बस, ठीक है। बाकी
Chalo, I will see you tomorrow. So before I leave, there is some general information that due to curfew, we do not have. Okay, one more question. Let me see. इतना कुछ क्लियर क्यों नहीं हो रहा भाई? तो सब messed up. Waiting आ रहे हैं. रोजी इथे SES ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁਡੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ठीक है, तो तुसी ऑलरेडी मेंशन कर सकते हो. ठीक है. एंड मैंने फोर्थ क्वेश्चन नहीं शो हो रहा. It's waiting जा रहा है. चलो, due to curfew, we do not have accessibility to Flying Feathers advanced technology platform and high-tech studio. So for the time being, we will be delivering our classes from the Zoom platform. Students will get many more features when we will be delivering our classes from the studio. So please stay tuned. Okay. So visit live.flyingfeathers.com for live class detailed schedule. Follow our Facebook page, YouTube channel for daily updates, tips and tricks and more. Our live classes are planned topic wise and not module wise. That is, the lectures will be delivered by topic experts and not complete module by just one trainer. Your feedback is very important to us. Please send us your feedback on support@flyingfeathers.com. Okay, so I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ tense clear है. And ਤੁਸੀਂ easily ਉਹ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ daily life. So whenever we are talking about habits, regular कोई चीज हो रही है, कोई hobby है, कोई generalization है, generalization ਦਾ again meaning ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ statement ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ generalization ਕੋਈ fact ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cats like milk ਉਵੇਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ present tense. ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ. Take care of yourself, your family members. अपना सारे guidelines follow करो guys, and be healthy, eat healthy, and I'll see you tomorrow. Till then, take care. Bye. Going.